and very good morning to all of you. I'm Saintha from Spotless Skin, and it's such a beautiful day, and I hope all of you are doing good. Today, we are going to talk about acne management. Acne एक ऐसा इशू है जिससे हम में से ज्यादातर लोग बहुत परेशान होते हैं, और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हो जाए तो क्या करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या नहीं करना है। और यही बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रेनिक बालेगर, MBBS, MD in dermatology, venerology, and leprosy, and he is an award-winning dermatologist with over 8 years of experience in clinical dermatology, hair transplantation, laser, anti-aging therapy, etc., etc. He is also a gold medalist from Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi. Dr. Raligar is known for his expertise in biofilm, vitiligo surgeries, and cosmetic dermatology. He is also faculty speaker at national conferences and has authored chapters in renowned dermatology textbooks. Passionate about research and education, he strives to bring metro grade dermatological care to every city. It's such a pleasure to have you with us, Doctor. A very warm welcome to you. Thank you. Thank you. Welcome, everybody. Thanks for such a wonderful introduction. So It's, yes, Doctor. I'll be clearing all the doubts regarding such a common condition, acne. So all myths will be busted today. So let's start this. एब्सोल्युटली एंड एक्ने को लेकर प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोग हैं जो एक्ने वल्गरीज एक्ने इश्यूज से गो थ्रू करते हैं, लेकिन हम इतने कई बार तो डिप्रेशन में चले जाते हैं एक्ने इश्यूज को लेकर, और ये नहीं समझ पाते कि क्या करना है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना है। टू स्टार्ट विद डॉक्टर, हाउ डज एक्ने हैपेंस? एक्ने कैसे होता है, क्यों होता है? ओके, सो एक्ने का फुल टर्म मेडिकल टर्म है एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं। तो वल्गैरिस का मतलब ही कॉमन है। इट इज सो कॉमन दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस्ड इट इन आवर टीन्स। किसी किसी को टीन एज पे अराउंड 18-19 एज पे हार्मोन सर्ज होता है। तो उस हार्मोन सर्ज की वजह से हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स है वो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन करता है, और जो उसका पोर्स जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाता है। जो सेबम जो नॉर्मली बाहर जाना चाहिए तो स्किन के अंदर ही रह जाता है। दैट विल कॉज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट रेडनेस, स्वेलिंग, साथ में देयर विल बी सम टाइम्स इन्फेक्शन आल्सो। सो ऑल दिस मल्टीपल फैक्टर्स विल लीड टू एक्ने। सो इट्स वेरी कॉमन कंडीशन। बहुत लोगों को लगता है कि एक्ने आया ये तो कॉमन है तो चला जाएगा, उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। बट दैट्स नॉट द केस। जमाने में होता था एक्ने है तो ट्रीट नहीं किया तो चल जाता था, लेकिन दिस मॉडर्न जनरेशन दैट wants to have spotless skin, so the earlier we treat acne the better. तो एक्ने हील होने के बाद देयर आर चांसेस ऑफ लिविंग मार्क्स एंड परमानेंट स्कार्स। सो स्कार्स ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द मोमेंट यू सी एक्ने, visit a dermatologist and get it treated. I completely agree with you. Acne might go on by its own, but the scars, the marks it leaves, it's like forever. और वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक्ने का ट्रीटमेंट अगर हम सही से करेंगे, सही समय रहते करेंगे, तो चांसेस है कि मार्क्स एंड स्कार्स हो ही ना, और अगर हो तो इजीली उनका मैनेजमेंट किया जा सके। Now, Doctor, a very common tendency in our society, and I think you will completely agree with it. You might also get patients who do the same. Acne hua to will try something, home remedies, dadi ke nuske, nani ke nuske, or many of us will go to a nearby chemist shop, ki bhaiya dekho kuch ho gaya hai, kuch de do, and we'll start using those topical applications and use it for months and months before landing in front of a doctor. We normally land in front of a doctor जब हमें लगता है कि अरे ये तो ठीक ही नहीं हो रहा और ज्यादा हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, वरना इनिशियली तो हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट उस पे जरूर करते हैं। How bad or good it can be to experiment? See, experimentation with acne will lead to further aggravation of acne. Sometimes again it will lead to scarring and all. So I have seen commonly many of them applying toothpaste to their acne. उनको लगता है Yes. टूथपेस्ट रात को लगाओ, कल सुबह वो खत्म हो जाएगी। लेकिन टूथपेस्ट इज अ इरिटेंट। उसमें हाई अल्कलाइन सब्सटेंसेस रहते हैं दैट विल अगेन डैमेज योर स्किन। और कुछ लोग नींबू के रस लगा लेते हैं। देन सम ऑफ देम विल अप्लाई हल्दी एंड ऑल। हल्दी एक तरह का एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन उसका डोजिंग वगैरह कंट्रोल नहीं रहता है। दे अप्लाई लॉट ऑफ हल्दी दैट विल अगेन क्लॉग योर पोर्स।
तो अंदर से फिर एक्ने बढ़ जाता है. Some of them apply garlic juice, onion juice, and all these all contain harsh chemicals, including sulfur. तो इससे आपका एक्ने और खराब हो सकता है. So better you consult a dermatologist before experimenting with your acne. Earlier you treat, better the results of your acne. Mm-hmm. And those topical creams, normally steroid-based creams that we get from the chemist shop, बिना prescription के जो हम ले लेते हैं over the counter. और Those initially are डॉक्टर हमें लगता है that we have got hold on to a magical cream क्योंकि initially वो बहुत अच्छा work करता है. But later on we realize कि we have fallen for it और addict हो गई है skin एक तरह से उस tube की. yeah, How most bad of them. that can be. Few of them commonly available at medical shop. They call Betnovate, Panderm, Quadriderm. These all contains potent steroids. तो steroids are Hmm. actually anti-inflammatory. Steroids को कभी चेहरा पे नहीं लगाते. Only certain conditions है, eczema है, या psoriasis है, localized psoriasis है, lichen planus है, other skin conditions में हम potent steroids देते हैं. वो भी other than face जहाँ पे thick areas होता है. लेकिन किसी किसी को लगता है केमिस्ट को स्टेरॉइड लगाया तो सब कुछ ठीक हो जाता है, स्किन का कोई भी कंडीशन हो. तो इसीलिए दे गिव द स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स. तो उनको बहुत अच्छा लगता है, 1-2 दिन में कम हो जाता है, क्योंकि आई सेड एक्ने इज एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन. तो इन्फ्लेमेशन 2 दिन में ही सबसाइड हो जाता है स्टेरॉइड लगाने से. उनको अच्छा भी लगना लगता है, स्किन ग्लो भी करना लगता है, बिकॉज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड इज हाइपोपिगमेंटेशन. स्किन लाइट होना शुरू होता है, दे फील वेरी गुड, दे कंटिन्यू अप्लाइंग. धीरे धीरे उनका साइड इफेक्ट सामने आना शुरू हो जाता है, उनका फेस के ऊपर एक्ने और बढ़ जाता है, किसी किसी को बाल भी आ जाता है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेरॉइड अब्यूज, टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस और डिपेंडेंट फेस. उनका फेस अल्कोहल डिपेंडेंसी की तरह स्टेरॉइड डिपेंडेंसी शुरू हो जाता है. स्टेरॉइड छोड़ ही नहीं सकते, कंटिन्यूसली लगाना शुरू कर देते हैं, फुल चेहरा लाल होके, रेड होके, फुल डैमेज्ड. देयर इज समथिंग कॉल्ड एट्रोफी आल्सो. फुल टिश्यू पेपर जैसा पतला हो जाता है फेस, इतना डेंजरस होता है. कभी कभी इसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे तो स्टेरॉइड सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन हो जाता है. तो व्हेन स्टेरॉइड गेट्स अब्जॉर्ब देयर आर सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स. जैसे आपको मून फेस हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम होता है, वेट गेन भी हो सकता है, और ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रिटल बोन्स भी हो सकता है. इतना डेंजरस साइड इफेक्ट्स है स्टेरॉइड का. इसीलिए नेवर एवर यूज ए स्टेरॉइड क्रीम ऑन योर फेस इन फॉर एक्ने आल्सो, फॉर एनी अदर कंडीशन विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन. सो आप Right. देख सकते हो कोई हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट हैज स्टेरॉइड. क्रीम के ऊपर कंटेंट्स देखना जरूरी है. एनीथिंग विच एंड्स विथ सॉल, SOL, क्लोबेटासोल, या SONE, मोमेटासोन, क्लोबेटासोन, हेलोबेटासोल, ये सब स्टेरॉइड का क्रीम्स है. दैट शुड नेवर बी Okay. अप्लाइड ऑन एक्ने. Right. Another thing that we do is to pass on our prescriptions to others, to our friends, to family. कह रहे एक्ने हुआ है, मुझे भी हुआ था, मैं तो डॉक्टर के पास गई थी ना, मेरे पास तो प्रॉपर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है. नो OTC, तो तुम भी ले लो, तुम यूज कर लो. Now, how harmful that can be? मतलब कई लोगों को लगता है कि एक्ने है तो ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा. क्यों सबके लिए अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है डॉक्टर? Yeah, acne, the definition in our textbook, they say it's a array of pleomorphic lesion. Pleomorphic मतलब multiple types, एक तरह का नहीं होता है acne. There can be comedonal acne, जो whiteheads, blackheads है, उसको comedons बोलते हैं. Then there is papular acne, जिस पर रेड कलर का बम्स होता है. किसी को पस्टुलर एक्ने होता है, बहुत सारे पस भरा होता है. किसी को ग्रेड 4 नोडुलर सिस्टिक, इतना मोटा मोटा गांठ जैसा बना हुआ रहता है. डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ एक्ने, द टाइप ऑफ एक्ने, वी यूजुअली प्रिस्क्राइब. तो एक्ने इज ए कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट. जो एक पे काम कर रहा है वो दूसरे पे काम नहीं करता है. So it has to be varied depending upon the treatment, also varies depending upon the grade and type of acne. So better to consult and identify the reason and the type of acne before starting the treatments. Right. So it's a individualistic thing. सबकी स्किन अलग है, कॉजेज अलग हो सकते हैं एक्ने के.
और ग्रेड्स अलग हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक्ने है तो जितनी जल्दी हो सके आप एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाए. एक और प्रॉब्लम है, क्वैकरी इज इंक्रीजिंग रैपिडली डॉक्टर. Then we have these parlor wali aunties, saloon wale bhaiya will you know keep on telling us ye kar lo wo kar lo, we have this facial, that facial. Then nowadays there are so many influencers on various social media platforms, and most of them love talking about skin, though not all of them are good or qualified dermats. And we fall Yes. for it. Plus इतने products, customized products, ये वो तो market gimmick भी है. तो ऐसे में अगर एक इंसान है जो बहुत सारी चीजें या एक्सपेरिमेंटेशन करके ओटीसी करके देन एक डॉक्टर के पास जाता है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट का लेंथ ज्यादा बढ़ जाता है? क्योंकि इनिशियली आपने बताया कि स्टेरॉइड अब्यूज इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी स्किन एक टिश्यू पेपर जैसी हो सकती है, इतनी थिन हो जाती है. तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाता होगा एक एक्ने जैसे इशू को ट्रीट करने में, क्योंकि दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हो. Yes. Simple grade 1 acne can be cured by simple face wash, moisturizer and anti-acne medication. इतना स्मॉल प्रिस्क्रिप्शन से ग्रेड 1 कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंटेशन करने से, स्टेरॉयड लगाने से ग्रेड 1 से वो ग्रेड 4 तक चला जाता है. इन मल्टीपल पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, ये सब हो जाता है. तब आपका थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में और आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और फेशियल डिस्मॉर्फिक हो जाता है. आपको लाइफ टाइम स्कार के साथ रहना पड़ेगा. इसलिए वी यूजुअली सजेस्ट डू नॉट एक्सपेरिमेंट. सिंपल ट्रीटमेंट से भी हो जाएगा, बट गो टू द राइट. तो इन्फ्लुएंसर और सलून्स, पार्लर्स को हम कुछ नहीं कर सकते. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, वी शुड बी वेल इन्फॉर्म कि हमें क्या करना चाहिए एक्ने के बारे में. यू शुड गेट द नॉलेज, देन ओनली यू कैन ट्रीट. Absolutely. So please go and contact a qualified dermatologist. That's really very Yes. important. Now, doctor, as you mentioned, that it's important to have a good skincare routine. आपने कहा cleanser, moisturizer, sunscreen, acne treatment. Acne treatment पे तो हम बात करेंगे, लेकिन एक basic, एक बहुत ही minimalistic, जिसको लेके हम ज्यादा consistent हो पाए, ऐसा एक skincare routine क्या है जिससे हमारा skin barrier strong हो और acne को हम prevent कर सकें? Normal skincare routine, we call it as CTMP: cleansing, toning, moisturizing and protecting. ये 4 स्टेप रिजिम सबको करना जरूरी नहीं है. जस्ट CMP इज ऑल्सो एनफ. क्लेंजिंग, टोनर, इंडियन स्किन या ग्रेड 4, ग्रेड 5 फिट्सपैट्री स्किन में टोनर की जरूरत नहीं है. दे कैन यूज ए जस्ट क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड ए प्रोटेक्टिंग सनस्क्रीन. नाइट क्रीम, जिसको जो भी कंडीशन है, अगर एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है तो दे कैन यूज ऑयल कंट्रोलिंग नायासिनामाइड और सैलिसिलिक बेस्ड सीरम्स. इतना करेंगे तो विल हेल्प इन द लॉन्ग वे. बेसिक जेंटल स्टाइल अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं. उसके बाद जेल बेस्ड या एक्वा बेस्ड मॉइस्चराइजर्स will protect them, creating a barrier so that the external agents will not cause acne. And finally, sunscreen भी लगाना है. I prefer physical sunscreen which contains zinc or titanium dioxide, which will create a barrier from protect the skin from UV radiation. तो acne के बाद जो pigmentation होता है वो भी उसको help करेगा. So इतना basic skin regimen should be followed by all. Even those who do not have acne can follow this regimen. Right. Now, doctor, talking about cleansing, कई लोगों को लगता है कि बार बार चेहरा गंदा होता है, डर्ट जमा होता है, या मेरी स्किन बहुत ऑयली है, बहुत ऑयल सिक्रेशन होता है, सो दे कीप ऑन क्लेंजिंग देयर फेस अगेन एंड अगेन एन नंबर ऑफ टाइम्स. फिर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज्यादा फोम, लेदर फॉर्म होगा हमारे फेस वॉश से, उतना अच्छा हमारा चेहरा साफ होगा. झाग जितना होगा उतना अच्छा हमारा चेहरा साफ होगा. कई लोगों को ये भी लगता है. तो कितनी Yes. बार क्लेंजिंग करना जरूरी है, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है या एक्ने प्रोन Okay. स्किन है? This is also a biggest myth कि acne happens to those who are unhygienic, और जो चेहरा ज्यादा नहीं धोते हैं उनको acne हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. Acne can occur to anybody, even a actress can have an acne. So बार बार चेहरा धोने से acne ठीक नहीं हो जाता है. Basic twice cleansing is enough. मॉर्निंग एंड नाइट रेजिम, ट्वाइस ए डे जेंटल क्लेंजर इज एनफ. आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा जा रहे हो जहाँ पे धूल मिट्टी ज्यादा है, तो आफ्टरनून ब्रेक में बीच में आप एक बार धो सकते हो. लेकिन आई हैव सीन पेशेंट्स
who cleanse and wash the face like 5 to 6 times a day. इससे क्या होता है, well, body will secrete more oil. Reactive seborrhea बोलते हैं उसको. If you try to Okay. remove the oil so much, the body will secrete more oil and it will become worsen the acne. It will make your skin sensitive and dry. So basic, और फोम की भी जरूरत नहीं होता है, जिसको बहुत सारे ग्रेड 3 ग्रेड 4 एक्ने, उनमें फोम की जरूरत है ही नहीं. जेंटल क्लेंजर जो नॉन फोमिंग है उससे भी हो जाता है. लेकिन कोमेडोजेनिक एक्ने ग्रेड 1 ग्रेड 2 में जहाँ पे हमें केराटोलाइटिक्स की जरूरत है, वो लोग कैन यूज सैलिसिलिक, लैक्टिक और ग्लाइकोलिक बेस्ड फेस वॉश. Right. Now, talking about moisturizers, especially those who have oily skin, they feel again कि हम तो already इतना oil secrete कर रहे हैं, तो हमें moisturizer की क्या जरूरत है? And that is one of the reason they normally skip the whole part of moisturization. Why it's important even if the skin is oily, doctor? So previously, moisturizers were used to contain glycerin, paraffin, and all. This used to clog the pores, and we used to, and old dermatologists used to say that avoid moisturizer in acne. But recent newer generation moisturizers are basically has water-based or aqua-based gels. This will create a skin barrier, and this will prevent the damage of the skin. So a moisturizer is necessary even if you have acne prone skin, and it will maintain a certain level of pH and oil on the skin, so that there is no excess oil production by the skin. So I would prefer to use a gel-based moisturizer. And those who are on treatment like retinoids, oral or topical retinoids, these patients definitely need moisturizer because those retinoids tend to cause dryness, as it will reduce oil secretion. So in those also, we prescribe a moisturizer to battle the extreme dryness produced by the retinoids. Right. And now talking about the third thing that you mentioned in the skincare regimen, sunscreen. Sunscreen को लेकर तो इतने लोगों के मन में धारणाएं हैं, especially those who have acne prone skin, oily skin. कि I am already having acne. I don't want to layer it up with sunscreen. I don't like the patchy or dull effect that it creates. या बहुत ही चिपचिपा हो जाता है चेहरा, डल हो जाता है. या सनस्क्रीन लगाएंगे तो एक्ने और ज्यादा होने लगेंगे. ये तमाम तरह की बातें आपसे भी आपके पेशेंट शेयर करते होंगे. किस तरह का सनस्क्रीन चूज करें ऐसे में, और क्यों जरूरी है सनस्क्रीन लगाना, भले ही एक्ने प्रोन स्किन हो या एक्ने हो रहे हो उसका? See, these times of social media and so many influencers, market is flooded with thousands of sunscreen. आप ये नया है, वो लगाओ, ये लगाओ. तो even many of our patients get confused. या कि क्या लगाना है या नहीं लगाना है. तो sunscreen is necessary. In acne also, acne prone skin also, there are new sunscreens which are physical in nature. Dry touch या matte finish वाला sunscreen है. उसमें कंटेंट देखना जरूरी है. Physical sunscreens are those who create a physical barrier and reflect both UVA and UVP sun rays. You can choose titanium dioxide based, या iron oxide, या zinc oxide. These three are physical sunscreens. They can be safely used in acne prone skin also. They will not aggravate the acne. And also the base of the sunscreen should be again aqua based. Yeah, water should be the main constituent of the sunscreen. If we use such sunscreens, acne will not aggravate or increase. And also it prevents the pigmentation that is caused after the acne heals. So one is to avoid pigmentation, one is to create a physical barrier from external agents including UV and dirt and dust. So sunscreen is necessary for those who have acne. राइट. और अगर किसी भी तरह का डाउट है कि क्या क्लेंजर ले, क्या मॉइस्चराइजर ले, क्या सनस्क्रीन ले, कौन सा सूट करेगा, स्किन टाइप क्या है, स्किन कंडीशंस अगर हैं एक्ने या कुछ और, तो प्लीज गो टू अगेन योर क्वालिफाइड डर्मेट. दे विल हेल्प यू टू चूज द करेक्ट प्रोडक्ट. और मैंने तो कई लोगों से सुना है, एक बार अगर एक अच्छा सिंपल एक रेजिमेंट सेट हो जाए, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाए, एक अच्छा क्लेंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक अच्छा सनस्क्रीन जो आपके स्किन को सूट कर रहा हो, आपकी कंडीशंस को सूट कर रहा हो, तो लोगों को लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. एंड दे फॉल इन लव विद देयर स्किन एंड देयर रूटीन.
तो अगर ये करना है, डाउट है, तो प्लीज गो टू द करेक्ट पर्सन अगेन, व्हिच इज अ क्वालिफाइड एंड दे विल हेल्प यू. नाउ डॉक्टर, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर अब हम बात करेंगे, एक्ने किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, उसके साथ ही साथ जो पोस्ट एक्ने मार्क्स एंड स्कार्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे. उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं, क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल है इस वक्त? Okay. So acne treatment again depends on the grade and severity of acne. Grade 1 and 2 acne में simple salicylic based face wash, a moisturizer, benzoyl peroxide, इतने से ही वो क्लियर हो सकता है. जिसको डीप सीटेड कोमेडोन से जो उससे क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें कोमेडोन एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं along with the simple basic chemical peel which includes salicylic and glycolic acid can help in clearing grade 1 acne. तो जो भी एक्ने है उसको क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 months लगता है फुल चेहरा साफ होने में. किसी किसी लोग आते हैं, कल मेरा फंक्शन है, आज मुझे पिंपल आ गया है, उसको 2 दिन में करो, वैसा नहीं होता है. एक्ने नीड्स मल्टी होलिस्टिक अप्रोच इन कंट्रोलिंग एंड गिविंग यू क्लियर स्किन. जिसको ज्यादा एक्ने उसको ज्यादा टाइम भी लगता है क्लियर होने में. ग्रेड 1 ग्रेड 2 एक्ने एटलीस्ट क्लियर होने में मिनिमम 1 मंथ लगता है. जो अगर हम बेसिक मेडिकेशंस जो देते हैं उससे वो क्लियर हो जाएगा. उसके बाद मेंटेनेंस की भी जरूरत है. और ग्रेड 3 पस्टुलर एक्ने है, या उसमें हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं. दिस एंटीबायोटिक्स आर नॉट टू किल बैक्टीरिया, इट इज मेजरली ड्यू टू reduce inflammation. We give doxycycline, minocycline, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है. ये थोड़ा लॉन्ग कोर्स देते हैं at a lower dose, so this will control the acne and inflammation associated with it. जिसको नोडुलोसिस्टिक है उसमें रेटिनॉइड्स की जरूरत होती है. These retinoids are अगर stronger prescription drugs, इसको only with dermatologist prescription लेना है. I have seen patients directly getting isotretinoin from chemists and starting on their own. This is not at all advised. बाहर की कंट्रीज में तो आइसोट्रेटमेंट मिलता भी नहीं है अनलेस यू साइन ऑन ए आई प्लेज करके आता है, जिस पे आपको साइन करना है कि यू नॉट गेट प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर इफ आई एम हैविंग आइसोट्रेटमेंट. इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करके ही आप आइसोट्रेटमेंट लेना है, दैट टू इन लास्ट स्टेज ग्रेड 4 विद ए डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्रिप्शन. ग्रेड 3 पे एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल रेटिनॉइड से भी क्लियर हो सकता है. these are all medication. Coming to the procedural treatments, जिसको इन्फ्लेमेटरी पस्टुलर एक्ने है, उसमें देयर इज न्यूअर ट्रीटमेंट समथिंग कॉल्ड फोटोडायनामिक थेरेपी या रेड एलईडी थेरेपी. दिस टाइप ऑफ लाइट विल आल्सो reduce the inflammation and it kills the bacteria causing acne, that is propionobacterium. जिसको कोमेडोनल एक्ने उसको सैलिसिलिक केमिकल पील से हो जाएगा. जिसको एक्ने विद पिगमेंटेशन है, बहुत सारे मार्क्स है, तो उसमें भी देयर आर newer peels like black peel, that is acetic acid, then glycolic acid peel, then there is retinol peel, yellow peel. These all will target both acne and the pigmentation marks associated with it. These are all safe if done by a qualified doctor. लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका, जो करेक्ट डेप्थ पे पेनिट्रेशन करेगा, तो उससे आपका एक्ने क्लियर हो सकता है, उसका स्पॉट्स भी क्लियर हो जाएगा. देन एक्ने स्कार्स जो है उस पे no creams will work actually. If you have acne scars, you should either get it treated by microneedling, or there are newer treatments, MNRF, micro needling radio frequency, and there are erbium YAG laser and fractional CO2 lasers. These four are the only things which will help in scars. Newer thing is platelet rich plasma, if combined with the above lasers, will improve the scars. Actually क्या होता है कि scars में there is loss of collagen और डेप्थ गड्ढा बन जाता है, तो गड्ढे को हमें ऊपर लाना है. तो इसमें कॉज फाइन माइक्रो इंजरी विच विल स्टिमुलेट द कोलेजन. जो भी गड्ढा है वो ऊपर आ जाएगा. उसमें भी अगर 100% साफ नहीं होगा, लाइक ए पैच वर्क होगा, 60 to 70% इंप्रूवमेंट हो जाएगा. जिसको वेरी रेजिस्टेंट सिवियर स्कार्स है, उसमें वी डू सब्सिशन. देयर इज न्यूअर ट्रीटमेंट, टाइलर लिबरेटर सब्सिशन with RF energy. These all will break the bands which tether the acne scar to the dermis. Some newer treatments है, you can consult the doctor for more details.
That's it. Doctor, आपने So scars की बात की, those pits and they, as you also said कि वो 100% scars चले जाए ये कई बार possible नहीं होता है, तो जितने कम scars होंगे उतना easy होगा, लेकिन ये scars होना इनको prevent करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, you know, because we love popping our or picking our acne, हमें लगता है this is a easier way to get rid of these acne, या फिर exfoliate भी बहुत करते हैं हम अपनी skin को कि जल्दी जल्दी सब चला जाए, क्या करना है और most importantly क्या नहीं करना है scars से the बचने के bad लिए? habit most of them have is to pick or squeeze the acne. Most of the Yeah. times unknowingly they do it. It's an urge to squeeze the acne. There is a condition Mhm. actually, we call it acne excori. They will Okay. not know that they are squeezing. They have a tendency to squeeze and pop out the acne. In Ah. such situation, the acne, the collected sebum along with the keratinized tissue, that will go inside instead of coming out. Only small part will come out. The rest of them will be pressed Ah. inside the dermis. This will again cause inflammation and leading to scars and all. So best is to avoid squeezing. And the moment you see simple, small acne, get it treated. That's the best thing to avoid scars. Use a proper treatment regimen so that your acne is cleared in 3 to 4 months. Then maintain it with proper retinoid creams so that you will not get newer acne. So if no new acne, then no new scars, then that's the best scar prevention you can follow. Okay. And doctor, diet seems to play a role in acne. So what kind of diet can worsen or improve acne? कोई dietary precaution? Again, actually, there is no exact relation between diet and acne, but newer Mhm. studies have shown that certain foods may aggravate. अगेन बहुत सारा हमको Okay. होता है. मेरी बहन है जो दिन में 1 लीटर दूध पीती है, उसको एक्ने होता ही नहीं है, सिर्फ मुझे होता है. देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशंस इन एक्ने आल्सो. Right. किसी को किसी से किसी चीज से होता है, किसी को किसी और चीज से होता है. एग्जैक्ट Mhm. कॉज पता करना मुश्किल है. द पेशेंट इज द करेक्ट जज टू नो विच फूड इज ट्रिगरिंग द एक्ने. कॉमनली जो Hmm. फूड है जिस पर रिसर्च हुआ है, दैट इज डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हाई ग्लाइसेमिक फूड्स. डेयरी प्रोडक्ट्स अगेन मिल्क से किसी किसी को एग्रेवेट होता है, चीज, पनीर, ये सब से होता है, लेकिन वी हैव सीन कर्ड से होता नहीं है. कर्ड और बटर Hmm. मिल्क कैन बी इजीली टेकन. Hmm. Still, so they can replace it with other plant-based milk, जो almond milk है, coconut milk है. Hmm. They can Yeah. replace this with dairy milk. Then high glycemic foods like chocolate, पिज्जा, मैदा, जो ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाता है, स्पाइक देता है. These foods are known to aggravate the acne. बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जिसके ब्लड में ज्यादा शुगर स्पाइक होता है, तो आईजीएफ विल बी प्रोड्यूस. दिस आईजीएफ विल अगेन stimulate the oil glands leading to acne and further complications. So better to use low glycemic foods, जो complex carbohydrates होता है, जिसपे ज्यादा फाइबर होता है. complex carbohydrates again ज्वार, रागी, millets, these are all carbs but they do not cause spike in the blood sugar. So any food which cause sudden increase in sugar will lead to acne. So again exercise is important. जो आपके ब्लड में शुगर है उसको Hmm. यूटिलाइज करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करना जरूरी है. तो एक जगह सिटिंग जॉब, सेडेंटरी जॉब करते हैं, लैपटॉप या टीवी के सामने दिन भर बैठते हैं, मोबाइल के सामने, तो इससे भी आपको बॉडी को काम ही नहीं है. तो देयर विल बी लॉट ऑफ टॉक्सिन्स, देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इनसाइड. बॉडी को कुछ काम नहीं है तो इट विल come up as a acne. So move the body. Movement is the should be enjoyed. Like simple steps, finish your 5,000 steps, do a cardio, or take a sports like table tennis or badminton. I have seen it. Have you seen any sports person having acne? I haven't seen, because they regularly take up sports Yeah. and they sweat a lot. The more you Yeah. sweat, the less you will have acne. बट देर आर Okay. कंडीशंस, जो जिम में बहुत सारे स्वेट होके उसको क्लीन नहीं करेंगे, बहुत देर तक स्वेट रखेंगे, तो उसमें एक्ने होने के चांसेस है. यू स्वेट a lot and Right. immediately wipe it with a clean cotton Hmm. cloth. Right. So good lifestyle goes a long way in maintaining good skin
health and good skin barrier as well. तो डॉक्टर अगर Yes. एक्ने है या एक्ने प्रोन स्किन है और मेकअप भी करना है तो क्या करे क्या नहीं करे? मेकअप बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको लगता है कि एक्ने आ गया तो मैं लाइफ में कभी मेकअप ही नहीं करना है, वैसा कुछ नहीं है। देर आर गुड प्रोडक्ट्स, अगेन वाटर बेस्ड, एक्वा बेस्ड मेकअप्स आते हैं जो ना आप मॉइस्चराइजर जो प्रिस्क्राइब किया है उसको लगाने के बाद, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको जो भी करना है, नॉर्मल फाउंडेशन और कंसीलर जो भी आप यूज़ करते हो, मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। ये लगाने के बाद उसके बाद एंड ऑफ द डे यू शुड डबल क्लेंस इट, रिमूव द मेकअप कंप्लीटली एंड देन ओनली स्लीप। कुछ लोग बहुत बिजी होके मेकअप के साथ सो जाते हैं, देयर विल बी अगेन उनके पिलो कवर्स क्लॉग कर देते हैं, उनके चिन्स को मेकअप क्लॉग करके अगेन ऑयल सेक्रेशन बढ़ के एक्ने बढ़ जाता है। तो बिफोर अप्लाइंग मेकअप यूज ए good moisturizer, sunscreen, and over it you can apply your makeup, and at the end of the day remove the makeup thoroughly with using a cetyl alcohol based cleansers. You can use double cleansing also, then apply moisturizer at night, so this will prevent any acne flare up with the makeup. Okay. And doctor, before we wind up the whole session, any take-home message for our viewers? A take home message: acne vulgaris is a very common condition, so don't be uh, get depressed if you have acne. There are a lot of treatments which have come up. The medical science has evolved a lot, so don't get embarrassed with having an acne. It can be cleared if treated by a right person, and you get treated as early as possible so that you have a clear, beautiful, spotless skin. That's my message. Absolutely, absolutely. Thank you so very much, Dr. Shrenik. It was wonderful talking to you. Thank you for making the whole topic so easy for us to understand. और मुझे लगता है कई बार एक्ने में क्या करना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमको क्या नहीं करना है। तो वो भी आपने Yes. बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारे मिथ्स थे जो आपने बर्स्ट किए। थैंक यू सो वेरी मच वंस Thank you. Welcome. Thank you. Bye. and viewers, thank you for your excellent participation in today's session. Stay happy, stay healthy, and take good care of your skin. And stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Have a great day ahead. Goodbye.